اب ہم قیامت کے روز کے خوفناک منظر کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا کے خاتمے کے بعد ایک طویل انتظار کے بعد ایک زوردار آواز آتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور انہیں ایک بار پھر سور پھونکنے کا حکم دیتے ہیں۔ پل صراط جب فیصلے ہو چکے ہیں، جہنم پر ایک پل رکھا گیا ہے جو جنت تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کی دونوں طرف کنڈے لٹک رہے ہیں۔ ان کا کام ان لوگوں کو پکڑنا ہے جن کا حکم دیا جائے۔ نہیں، براہ کرم میری مدد کریں، نہیں۔ اور خدائے رحمت کے سامنے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اب دنیا ختم ہو چکی ہے، ایک ایک کر کے ملک الموت سمیت تمام فرشتے مر چکے ہیں، لیکن اب وہ وقت ہے جب سب کچھ حقیقی معنوں میں شروع ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اور اب دوبارہ زندہ ہو کر سب میدان حشر میں جمع ہو رہے ہیں، اول انسان سے لے کر ہر وہ شخص جو بھی مر چکا ہے، انہیں ایک ایک کر کے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا اب ویسی نہیں رہی جیسے ہم اسے جانتے تھے، یہ ایک بالکل مختلف جگہ میں بدل چکی ہے، ایک ہموار لامتناہی میدان جس کا کوئی افق نہیں، اتنا بڑا جتنا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں ایک لمبا انتظار ہوگا، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے کر حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے تمام اعمال میزان پر تولے جائیں گے، پھر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور آخرکار وہ سفر شروع ہوگا جس کا اختتام یا جہنم پر ہوگا یا جنت پر ختم ہوگا۔ ایک کے بعد ایک ہم ان مراحل میں سے ہر ایک کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو حیرت ہو کہ مردوں کو کیسے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا جب وہ گل سڑ کر زمین کے نیچے بکھر چکے ہیں، انہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس آیت میں ہمارا رب اس سوال کا ایک خوبصورت جواب دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک کیا وہ خالق جسے ہم کائنات میں اس کے کاموں کے ذریعے جانتے ہیں، جو لامتناہی طاقت اور قوت رکھتا ہے اور ہر چیز کو کامل تربیت میں رکھتا ہے، ہمیں ہر موسم بہار میں دوبارہ زندگی کی مثالیں نہیں دکھاتا؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے بیجوں کو کس طرح زندگی دی جاتی ہے؟ وہ اگ کر کئی رنگوں کے پھولوں میں کھل اٹھتے ہیں۔ کیا آپ اس کے گواہ نہیں ہیں؟ ایک ایسے کمانڈر کے بارے میں سوچیں جس کے پاس ایک وسیع اور طاقتور فوج موجود ہے، پھر وہ ان سب کو جا کر آرام کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمانڈر اپنے بکھرے ہوئے سپاہیوں کو ایک گھنٹی کی آواز کے ذریعے دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ نے انسان کو انگنت عوامل کو اکٹھا کر کے تخلیق کیا ہے۔ وہ ایک ماں کو پوری دنیا سے جمع کر کے کھانا فراہم کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اس کے پیٹ میں بچے کو تخلیق کرتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ موت کے بعد جب ہمارے جسم مٹی میں بکھر جائیں تو وہ دوبارہ ہمیں جمع کر کے زندہ نہیں کر سکے گا؟ جیسا کہ آیت کہتی ہے، کیا ہمیں پہلی بار ان کو پیدا کرنا مشکل تھا؟ لوگ وحشت اور خوف میں اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، ایسے گویا کہ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔ ننگے پاؤں اور بے لباس وہ سب کسی ایک طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں، لیکن جس دہشت اور صدمے میں وہ ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، وہ ٹڈی دل کی طرح بکھر کر ہر سمت دوڑنے لگتے ہیں۔ در حقیقت انہیں اسلام کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بلانے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ کافر کہیں گے، یہ ایک مشکل دن ہے۔ وہ مومن جو خدا کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، فخر اور خوشی کے چہروں کے ساتھ چلیں گے یا اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کچھ چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے جبکہ دوسرے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگیں گے، لیکن بے سود، ہر کوئی اپنے ہی مسائل میں گم ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوگی، اپنے گناہوں سے نجات پانا۔
मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटे, अपनी बीवी और अपने भाई को फिदिये में दे दे, और अपने उस खानदान को भी जो उसे पनाह देता था, और वो जमीन पर जितने भी लोग हैं सबको देकर खुद को बासानी बचा ले। बराए करम मुझे जाने दो। अगर चाहो तो मेरी बीवी को ले जाओ, अगर चाहो तो मेरे दोस्तों को ले जाओ। दुनिया में कोई शख्स जिसके साथ भी दोस्ती रखता था और जिसकी भी बात सुनता था, वो यौम हिसाब में उन लोगों को तलाश करेगा। अगर ये दोस्तियां बुराई की राह पर थीं, तो जैसे ही वो उन्हें पाएगा वो उनका गिरेबान पकड़ लेगा। जब मैं जमीन पर था तो मैंने तुम्हारी पैरवी की, मैंने वो किया जो तुमने कहा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग जाएंगे। वो अपने पैरोकारों को देखना भी नहीं चाहेंगे, और उनके पैरोकार पशेमां होंगे और पैरोकार कहेंगे, काश हमें एक बार फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए, तो हम भी उनसे लातालुकी का ऐलान करेंगे जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ नाम आपके जहन में भी आने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपको उस दिन सामना करना पड़ेगा। अगरचे आपको उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन फरार की कोई राह नहीं है। तमाम इंसानियत एक बड़ी कतार में खड़ी हुई होगी, और अब ये इंतजार का वक्त है। लोग हैरान होंगे कि ये इंतजार कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उस दिन सूरज पहले से कहीं ज्यादा लोगों के करीब लाया जाएगा, जबकि वो दुनिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप में भी नहीं खड़े हो सकते थे। लोगों को उस दिन झुलसा देने वाले सूरज के नीचे एक बहुत तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ेगा। अपने गुनाहों के बोझ के मुताबिक हर कोई इस तरह पसीने में डूबा होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या बिल्कुल भी साया नहीं होगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खुशखबरी सुना दी थी उन लोगों को जो साए में होंगे। उन्होंने फरमाया, उस दिन जब उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपना साया अता करेगा। एक आदिल हुक्मरान, एक नौजवान जो अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा, एक वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ हो, वो 2 शख्स जो सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हों और वो सिर्फ अल्लाह के लिए मिलते और जुदा होते हों, और एक ऐसा शख्स जो एक हसीन जमील औरत की नाजायज ताल्लुकात की दावत को रद्द कर दे और कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक ऐसा शख्स जो इतनी खामोशी से सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले कि उसके दाएं हाथ ने क्या दिया। और एक शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाएं। एक और हदीस में खुशखबरी यूं दी गई है कि जो शख्स किसी कर्जदार को जो तंगी में हो मोहलत दे, या तमाम या कुछ कर्ज माफ कर दे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे अपने अर्श के साए में पनाह देगा, जब उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंतजार बहुत तवील अरसे तक जारी रहेगा, लेकिन हिसाब शुरू नहीं होगा। यहाँ तक कि एक वक्त आएगा जब लोग इस सूरत हाल से निजात दिलाने के लिए किसी को बेताबी से तलाश करेंगे। सबसे पहले वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबू बशर के पास जाएंगे, फिर हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अगरचे वो सबसे अजीम अंबिया में से हैं, लेकिन हर एक कहेगा नफसी नफसी, यानी मैं। एक ऐसा शदीद दिन के अंबिया अलैहिस्सलाम भी सिर्फ अपने आप को बचाने में मसरूफ होंगे। सुभान अल्लाह, उनमें से कोई भी खुद को अल्लाह से ये दरख्वास्त करने के लायक नहीं समझेगा। हर एक दूसरे की तरफ इशारा करेगा, यहाँ तक कि आखिरकार हमें नबी पाक की तरफ भेजा जाएगा, और आखिर में वो अल्लाह से जो दुआ करेंगे, जिसके बाद हिसाब शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ शुरू होगा वो पहले की हर चीज से ज्यादा सख्त होगा। अजीम हिसाब से पहले हर कोई एक कतार में खड़ा होगा, फिर बाएं तरफ से एक खौफनाक गरज सुनाई देगी जिससे हर कोई डर कर कांप उठेगा। जहन्नम की आग अपने तमाम गुस्से और ताकत से जाहिर होगी, बेसब्री से दहक रही होगी, क्योंकि उसके सामने वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने बेशुमार जुल्म और खौफनाक गुनाह किए, जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी को झुठलाया, जिन्होंने ईमान वालों का मजाक उड़ाया, और जिन्होंने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। खौफजदा होकर वो सिर्फ बेबसी से घूर ही सकेंगे, और दाएं तरफ जन्नत अपनी तमाम खूबसूरती और शान और शौकत के साथ जाहिर होना शुरू हो जाएगी। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाए और उसके नबी की बात मानी, वो खुशी से इंतजार कर रहे होंगे। अपने हिसाब से पहले रास्ते में आपको एक चौंका देने वाला मंजर नजर आता है। दुनिया में एक भेड़ ने एक मरतबा एक हमला भेड़ को सींग मारा था, जिससे उस भेड़ का बच्चा जाया हो गया था। उस दिन उन दोनों भेड़ों को आमने सामने लाया जाएगा ताकि कसास लिया जाए, और दूसरी भेड़ के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। उस लम्हे आपको हकीकी मायनों में एहसास होगा कि छोटी सी छोटी चीजें भी जिन्हें आप गैर अहम समझते थे, उनका भी हिसाब लिया जाएगा। तो जिससे जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो देख लेगा, और जिससे जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। अब हर एक को उसका नामा अमाल दिया जाएगा।
अहले जन्नत उसे दाएं तरफ से हासिल करेंगे, जबकि अहले जहन्नम उसे बाएं तरफ से या पीछे से हासिल करेंगे। जिनका नामा अमाल दाएं तरफ से दिया जाएगा उन्हें असहाबुल यमीन कहा जाता है, दाएं तरफ वाले, और जिनका नामा अमाल बाएं तरफ से या पीछे से दिया जाएगा उन्हें असहाबुल शिमाल कहा जाता है, बाएं तरफ वाले। और अमाल नामा उनके सामने रखा जाएगा और बदकार उसमें लिखी हुई बातों से डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, ये कैसा रिकॉर्ड है। इसने छोटे या बड़े किसी अमल को भी बगैर हिसाब के नहीं छोड़ा। हर वो अमल जो उन्होंने किया था उनके सामने रख दिया जाएगा। आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता। काश मैंने कभी शैतान की पैरवी ना की होती। प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक और मौका दे दें। काश मैंने अपने नफ्स की पैरवी ना की होती। काश मैं मट्टी हो गया होता। जहां तक अहले जन्नत का ताल्लुक है, जब उन्हें उनके नामा अमाल मिलेंगे तो कुरान उसको इस तरह बयान करता है, जिस किसी को उसकी किताब दाएं हाथ में दी जाएगी वो कहेगा, ये लो मेरी किताब, इसे पढ़ो। मैं जानता था कि हिसाब का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह वो एक खुशगवार जिंदगी में होगा। इतने खौफनाक दिन के होते हुए क्या हमें इस खुशी और आराम को हासिल करने के लिए हराम कामों से दूर नहीं रहना चाहिए? तमाम तर दहशत के बावजूद उस दिन किसी शख्स से जो सवाल किया जाएगा वो बिल्कुल सीधा सा है। जो जिंदगी गुजार कर आए हो, जो आखिरत के मुकाबले में तकरीबन कुछ भी नहीं है, वो हराम कामों से दूर रहकर गुजारी या नहीं? बहरहाल जो भी अपनी जिंदगी आराम में गुजारता है वो हकीकी खुशी का जायका कभी नहीं चख सकता। अल्लाह ताला काफिरों से पूछेगा, तुम जमीन पर कितने साल रहे? तो वो कहेंगे, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। गिनने वालों से पूछ लो। अल्लाह फरमाएगा, तुम बहुत ही कम रहे हो, काश तुम जानते होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी खरीदी, तो उनसे ना ही अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और अब वो जिन्होंने ईमान लाने से इनकार किया, जो काफिर हैं, वो अनकरीब जहन्नुम में डाले जाएंगे। वो उसमें हमेशा रहेंगे, कभी नहीं निकाले जाएंगे। अपने कुफर और उस जुल्म के मुताबिक जो वो करते थे, उनकी सजा उससे भी ज्यादा सख्त होगी। लेकिन शायद इससे बदतरीन ये है कि वो अपने रब को कभी नहीं देख सकेंगे जिसने उन्हें पैदा किया। अब सिर्फ एक मरहला बाकी है, पुले सिरात, जो जहन्नुम के ऊपर बनाया गया है और जन्नत की तरफ जाता है। मुत्तकी, मोमिन, गुनहगार, काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाला, हर कोई इस पुल पर आएगा। जन्नत तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पुल को अबूर करने वाले पहले लोग नबी पाक और उनकी उम्मत होंगे। हर कोई अपने अमाल के मुताबिक इस पुल को अबूर करेगा। कुछ बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ चल भी नहीं सकेंगे और रेंग कर पार करने की कोशिश करेंगे। सिरात के दोनों अतराफ में कुंडे लटक रहे होंगे जिन्हें मखसूस लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जाएगा। नहीं, बराह करम मेरी मदद करें। नहीं। कुछ इन कुंडों से जख्मी और खराश ज़दा होकर बच निकलेंगे, जबकि कुछ पकड़ लिए जाएंगे और जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। जहन्नुम कभी मुतमईन नहीं होती। जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम भर गई हो, तो वो चिल्लाती है, हल मिन मजीद, क्या कुछ और है? उसकी सारी हौलनाकी के साथ जहन्नुम हमारे कदमों के नीचे है, हमारी आंखों के सामने भड़क रही है। हम कोशिश करते हैं कि इसे ना देखें और पुल पर चलते रहें। फिर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनमें से कुछ अपने गुनाहों पर अफसोस कर रहे हैं, जबकि कुछ जहन्नुम में गिर रहे हैं। और वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत को याद रखा। वो बगैर किसी तकलीफ के पुल को तेजी से पार कर लेते हैं। नेक लोगों को जहन्नुम दिखाने का मकसद उन्हें डराना नहीं है, बल्कि उनकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ाना है। उन्हें दिखाया जाता है कि खौफनाक जगह से उन्हें बचा लिया गया है। वो एक लम्हे में गुजर जाते हैं, उनकी तड़प बिलाखिर खत्म हो जाती है और वो अपने अब्दी घर तक पहुंच जाते हैं, यानी जन्नत। जबकि ये सब कुछ हो रहा है, कोई है जो गम और हमदर्दी के साथ दुआ कर रहा है, जिससे अपनी सारी जिंदगी अपनी उम्मत की तरफ रहमत से देखा और उनके लिए दुआ की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब सलामती अता कर। वो अहले ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं। उस दिन हमारी मुश्किल हमारा हिसाब होगा, लेकिन उनकी मुश्किल अपनी उम्मत को इस हालत में देखना होगा। उन लोगों को देखना जिन्हें उनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए गए होंगे। पुलिस रात में उनकी हालत और उनका एक एक करके जहन्नुम में गिरना।
दूसरी तरफ उन्हें तसल्ली होगी उन लोगों को देखकर जो जन्नत के दरवाजों तक पहुंचने में कामयाब रहे। आखिरकार जहन्नुम ने उन लोगों को ले लिया जो उसके मुस्तहिक थे, और अब वक्त आ गया है कि जन्नत अपने लोगों का इस्तकबाल करे। और जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें जन्नत की तरफ ग्रोहों की शक्ल में ले जाया जाएगा। जब वो करीब पहुंचेंगे तो जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोले जा चुके होंगे और उसके मुहाफिज उनसे कहेंगे, सलाम हो आप पर, खूब रहे आप लोग, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाएं। इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इस पूरे सफर के इख्तिताम पर हम जिस जगह पहुंचेंगे वो इतनी खूबसूरत है कि हमारे परवरदिगार के अल्फाज में जन्नत ऐसी है जिसे न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान ने उसे सुना और न किसी इंसान ने कभी उसका तस्वुर किया। और अब अपनी खुशी की सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं जहां हम हमेशा रहेंगे और हर किस्म की खुशियों से लुत्फ अंदोज होंगे, और सबसे बढ़कर हमें सबसे बड़ी नेमत हासिल होगी, अल्लाह का दीदार। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मान लें कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह इसे आपके सामने लाया है और इसे आखिर तक देखने में आपकी रहनुमाई की है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलें। तो क्या आप बदले में उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाएंगे? ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो इसी वक्त नमाज शुरू कर दें। हमारी मुकम्मल तौर पर मुफ्त और इश्तिहारात के बगैर सलाह ऐप के साथ आप 5 नमाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप अपने ईमान को मजबूत और अपने इस्लामी इल्म को वसी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए इस चैनल पर बहुत सी वीडियो तैयार की हैं। आप इन्हें देखने के लिए एक हदफ मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आपको अरबी में कुरान पढ़ना नहीं आता तो हमने लेम अलिफ कुरान के नाम से एक ऐप तैयार की है जिससे आप जल्दी, आसानी और मुफ्त में कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के मायनों को मजीद गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी तफसीर पढ़ने वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लिए एक हदफ मुकर्रर कर लेंगे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो जन्नत हकीकत में कैसी है, क्या नेमतें हमारा इंतजार कर रही हैं, उन सब के जवाबात चौथे और आखिरी हिस्से में होंगे। जन्नत और जहन्नुम AI के जरिए मंजर कशी मिलते हैं। क्या आपने कुछ महसूस किया? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई इश्तिहार नजर नहीं आता, क्योंकि टूवर्ड्स एटर्निटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। हम सिर्फ आपकी मदद से ये वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अतिया करें और इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें।